So welcome all, dear Dr. Shah. Today our next chapter in strength of material is chapter 4. Shear force diagram and bending moment diagram. Very important chapter. So what we cover in this chapter is we draw a shear force diagram and bending moment diagram of different cases. For concentrated load, what's will be the shape of shear force diagram, bending moment diagram. Similarly for the UDL load, gradual varying load, and all these cases we go through, and at what positions will be the maximum bending moment, and what happens when the maximum bending moment is there, and what will be the value of the shear force, all these things. Then after point of contrast structure, and very important of chapter, number of questions being asked. So based on these chapters I am going to solve some of the previous year important questions. So first solve gate 1 question, okay, asked in 2020. A beam of negligible mass is hinged at support P, okay, here, and has a roller support Q here as shown in the figure. A point load of 1200 Newton is applied at point R, okay, here 1200 Newton is applying. The magnitude of the reaction force at support Q is, what will be the support? So support will be in this direction. Okay, na? This support will try to give force here so that it will remain vertical. Okay. So to solve these questions, how, what should we do? So here, okay, let's draw all the things here. A reaction R RP load is acting vertical. No, no, it is a support load. No, so here it will be Q load, RQ load, giving load to the wall of this wall. Okay, so now the question is asking what will be the value of this. Okay, how one can solve this? A straight line here, and then a straight line, another vertical wall is here, and it is a QRQ load is acting here, and here P load is acting, so say RP load is acting here. So here is the 1200 Newton. Okay, distance given is 5. This is also 5. Okay, and this is our 4 meter. तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको कुछ इस तरीके से करने का जरूरत पड़ेगा। चलो, क्या मैं लोड ऐसे दे दूं यहाँ पर, या यूं कहें एक लोड ऐसे दूं, एक लोड ऐसे दूं. These two loads, green left side load and right load, will cancel each other. Okay, so remain the question will be as it is remain. So no changes in the question I have done. Okay, say this is our what, load R Q acting here of same magnitude, here R Q same magnitude. ठीक है, अब देखो ये लोड और ये लोड दोनों मिलके कपल क्रिएट कर रहा है. क्या कर रहा है? कपल क्रिएट कर रहा है. दिस लोड एंड दिस लोड मीन्स दिस लोड एंड दिस लोड कपल क्रिएट कर रहा है. तो क्या होगा हम लोगों का, ये था
ये था, ठीक। तो ये हम लोगों का आर, ये हम लोगों का आर क्यू और ये कपल हुआ। तो यहाँ पर कपल क्रिएट हुआ, यहाँ पर आर क्यू इंटू वट, आर क्यू इंटू डिस्टेंस, दिस 4, तो 4 क्यू। ओके, ये लोड आर क्यू का ऐसे ही रहेगा, दिस इज आवर एक्स्ट्रा लोड ना, आर क्यू। एक लोड इधर आर पी है, इधर है हम लोगों का 1200 न्यूटन, ये 5 का है मीटर, और ये अगेन 5 मीटर का है, ठीक है। तो देखो, हमें आर क्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, ठीक है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोमेंट अबाउट पी विल बी 0, ठीक है। इस वर्टिकल में तो अब लोड है नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस लेंथ के रॉड पर मोमेंट अबाउट पी विल बी 0। ये लोड आर क्यू तो along the axis of the rod, तो will not participate in moment, ओके। ये एक्सियल लोड है, जैसे कॉलम के केस में होता है, ओके। ये लोड आ रहा है, 4 इंटू आर क्यू का मोमेंट है, मोमेंट ही है ना, न्यूटन इंटू मीटर है, आर क्यू इन न्यूटन एंड 4 इज अ मीटर, ओके। तो ये मोमेंट हो गया हम लोगों का, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये ऐसे उठेगा, ऐसे पी पे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर व्हाट विल डू, -4 RQ एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पी, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये क्या जा रहा है, ये लोड आ रहा है 1200 वाला, पी पे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। ये था हम लोगों का आर क्यू एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, 1200 वाला, तो प्लस क्लॉकवाइज वाला के लिए इंटू डिस्टेंस इंटू 5, दिस डिस्टेंस कितना आ गया, 0। तो आर क्यू बराबर कितना आ गया हम लोगों का, 1200 गुना 5 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 या 12, आ गया 1500 क्या, न्यूटन। आंसर विल बी 1500, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, एक कैंटिलीवर बीम, ठीक है, दिए दे रखा है कैंटिलीवर बीम हम लोगों का, of length L, complete length L, subjected to a concentrated load P and a moment M is equal to PL upon 2, कुछ इस तरीके का दे रखा, shown in the figure, neglecting the mass of the beam, which one of the following options is correct representation of the shear force diagram and bending moment diagram, ठीक है। इसका थोड़ा सा किया जाए सॉल्व, देखो कैसे करेंगे इसको। मेरे पास ये बीम है, ये बीम है, यहाँ पी लोड लग रहा है, ओके। ये कंप्लीट एल है, तो ये एल बाई 2 हो गया, और ये हाफ पोर्शन एल बाई 2 हो गया, और यहाँ फिक्स्ड पॉइंट पे हम लोगों का मोमेंट दे दे रहे हैं, क्या है, पी एल अपॉन 2, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका पॉइंट नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब देखो यहाँ एक ड्रॉ करते हैं हम लोग, डॉटेड डॉटेड लाइन, क्या करते हैं हम लोग, लाइन डॉटेड डॉटेड लाइन, ये एक्स डिस्टेंस कहाँ से चल रहा है, ये इस पी से चल रहा है, फ्री एंड से, ओके। लेफ्ट साइड में वी आर गोइंग एक्स, वी एक्स क्या है, शियर फोर्स,
इजिकल टू px के राइट साइड में देखो कितने लोड है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ताकि यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सके। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया x, मीन्स ये वाला x और ये y, ये y। ठीक है, vx। ठीक है, ये इसके राइट साइड में कितने लोड है, कुछ भी नहीं है, शियर फोर्स कुछ भी नहीं है, जीरो कर देते हैं। ओके, mx मोमेंट, राइट साइड में कितने मोमेंट है भाई, पी एल अपॉन टू, भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस पी एल अपॉन टू, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन अस that anti-clockwise we are taking negative or positive. Okay, different books assumes different signs. ठीक है, रामानुथम का बुक पढ़िएगा तो दे विल assume anti-clockwise as a negative. ओके, तो इस तरीके से mx is equal to pl upon 2. ओके, ये इस तरीके से आया। तो यहाँ से ये किसके किसके बीच में है x, x varies from 0 to कहाँ तक, L तक। ये यहाँ से ऐसे जा रहे हैं हम लोग, कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी आर मूविंग। ठीक है, पी एल अपॉन टू, ये कहाँ, ये क्या हो गया, जीरो, तो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो हो गया हम लोगों का। चलो, यहाँ से शियर फोर्स तो जीरो हो गया हम लोग, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके एल बाई टू तक, ये यहाँ तक एक्स वेरी करेगा, फिर यहाँ से दूसरा एक एक्स लेना पड़ेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पी एल अपॉन टू, ये x इज इक्वल टू m, या यू कहें पी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो, m x इज इक्वल टू जीरो पर माइनस पी एल अपॉन टू, है ना, जीरो पर। अब l बाई टू पर कितना होगा, l बाई टू पर क्या होगा, m वी एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू पर कितना होगा, शियर फोर्स तो जीरो का जीरो है, m x इज इक्वल टू एल बाई टू पर कितना होगा, वही का वही, बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या, ये पूरा के पूरा स्टेट x इज इक्वल टू जीरो पे भी शियर फोर्स जीरो, दिस x इज इक्वल टू एल बाई टू पर भी शियर फोर्स जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो का मोमेंट कितना है, माइनस पी एल अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे कुछ, माइनस पी एल अपॉन टू, ये नीचे की तरफ आएंगे हम लोग, है ना। अब फिर ये x इज इक्वल टू एल बाई टू पर भी माइनस पी बाई टू, यहाँ पर आएंगे क्या, ये दोनों लाइन कैसे कनेक्ट होगा, कांस्टेंट लाइन से होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर लाइन नहीं है ये, इट इज कांस्टेंट, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू थ्री, y इज इक्वल टू फाइव। ग्राफ एक्स वाई का कैसे प्लॉट होगा, एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक बना। ओके, ये सिर्फ राइट साइड पोर्शन का है। ठीक है, कुछ मैच कर रहा है क्या आंसर, हाँ ये शियर फोर्स का है ना, शियर फोर्स डायग्राम का है ना, तो ये हम लोगों का जीरो हो गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैच कर, ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, अब बाकी ये दोनों पर मेहनत करना है हमें। तो ये देखो, ये वाला और ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वी हैव एज्यूम्ड ऑलरेडी सेड माइनस इन सम ऑफ द बुक्स दे टेक। ये वाला पोर्शन का तो आ गया दोनों का, है ना। अब ये वाला पोर्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, l बाई टू से l, मीन्स अब दूसरा हम लोग x लेंगे, ये वाला x x सेक्शन। ठीक है, ये होगा x। ठीक है, ये कौन सा x होगा,
ये होगा हमें x। ठीक है, इस x एक्स सेक्शन के राइट साइड में देखेंगे कौन कौन सा लोड, कौन कौन सा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, वी एक्स। ठीक है, इस x एक्स सेक्शन के राइट साइड में कौन कौन सा लोड लग रहा है, कोई लोड है क्या, इधर तो नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर आएंगे राइट बी से चलेंगे सी की ओर जाएंगे, बी से सी के बीच में नहीं है लेकिन सी पर है, नीचे लग रहा है, तो डाउनवर्ड लोड माइनस पी। ठीक है, ये भी एक हम लोगों का कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यानी कि ग्राफ हम लोगों का निगेटिव यहाँ पर जाएगा, माइनस पी, है ना, यहाँ पर एम एक्स भी निकाल लेते हैं। ओके, मोमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बी, ये एम इज इक्वल टू एल अपॉन टू कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को पी एल अपॉन टू, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव किया। अब कौन सा है, कोई लोड है क्या, हाँ ये भी एक लोड है, ऐसे आ रहा है, ये कौन सा है, अबाउट एक्स एक्स, पी इंटू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यानी x से लेकर ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये पूरे x में से l/2 को माइनस कर देते हैं, मिल जाएगा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मिलेगा x में से, इस पूरे x में से l/2 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, p यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो इसका न्यूटन है, मीटर से मल्टीप्लाई करना है यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना डिस्टेंस है p, और ये इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, बोला x माइनस l/2, कितना आ रहा है, माइनस पी एल अपॉन टू। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, x माइनस l/2, तो माइनस पी एल अपॉन टू, ठीक है, प्लस पी एक्स माइनस पी एल अपॉन टू। ठीक है, तो ये आ रहा है हम लोगों का पी एक्स। ओके, तो माइनस 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 पी इंटू एल। ठीक है, ये आ रहा है, तो इस ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर है ना। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू l/2 पर, l/2 पर, क्योंकि स्टार्टिंग l/2 है ना, तो भी x इज इक्वल टू l/2 कितना आ रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है ये वाला। ठीक है, अब ये करते हैं m x इज इक्वल टू l/2 पर कितना आ रहा है, p l/2 माइनस पी एल। ठीक है, ये आ रहा है, कितना हो गया, -2 माइनस पी एल अपॉन टू आ रहा है क्या। ठीक है, अब एल पर देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वाला वैल्यू पर वी एक्स इज इक्वल टू एल पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस पी कांस्टेंट, अगेन एम एक्स इज इक्वल टू एल पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, p इंटू एल माइनस पी एल, माइनस पी इंटू एल माइनस पी, 0 आ गया ना, तो मतलब कि यहाँ पर मोमेंट 0 आएगा, है ना, यहाँ पर 0 आएगा। और उसके बाद x इज इक्वल टू l/2 पर, यानी कि l/2 पर कितना आ रहा है, माइनस पी एल अपॉन टू, ये वाला लाइन कैसे कनेक्ट होगा, स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोला, यहाँ पर लीनियर है, लीनियर आ रहा है। ठीक है, लीनियर नेचर का है, ऐसे आएगा। ठीक, और ये कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पर कितना हो रहा है, x इज इक्वल टू एल पर v का वैल्यू, x इज इक्वल टू एल पर v का वैल्यू माइनस p। ठीक है, x इज इक्वल टू एल पर ये हो गया ना एल, यहाँ से यहाँ तक एल हो गया ना, एल हो गया ना, माइनस पी। ठीक है, ये लाइन कैसे कनेक्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है क्या, क्यों, क्यों कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कर्व, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दो, डिफरेंट बुक्स एज्यूम्स डिफरेंट थिंग्स, तो ये तो ठीक है, ये दोनों ठीक है, फॉलो हो रहा है।
ये दोनों में से कौन सा फिट बैठ रहा है? यहाँ पर फिक्स्ड पे 0 होगा, तो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी ए। ठीक है, 0 हो गया ना यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, 2026 दिस ईयर, इसी साल में पूछा है। क्या पूछा है? टू स्ट्रक्चर मेंबर्स, ठीक है, दो स्ट्रक्चर मेंबर्स है, आर कनेक्टेड बाय ए हिंज। ठीक है, एक हिंज है। ठीक है, हिंज क्या होता है? ध्यान से देखो, एक हॉलो है, दिस हॉलो। ओके, एक रॉड है, इसके अंदर फिट करो। ठीक है, क्या करते हैं, पुट्टी जैसे होता है, इसमें लोड दे देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये हम लोगों का इसके ऊपर लोड देगा। मेरा हाथ क्या करेगा, ये इसके अंदर लोड देगा ऐसे। ठीक है, हाँ, ये हॉलो है पूरा, लोड देगा। ये जो पेन है, ये भी अपना एक लोड देगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। सेम फंक्शन हिंज आल्सो वर्क्स ऑन द सेम मैनर। ठीक है, एक मेंबर ये है, ए से डी और डी से लेकर सी, ऐसा है, एंड दे आर एक्सट्रीमली लोडेड एज शोन इन द फिगर। ए एंड बी आर रोलर्स, ए और बी रोलर्स है। रोलर्स मतलब कि एक रोलर है, सपोर्ट ऐसे गोल सा ऐसे रोलर रख दिया गया है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे डी में। ठीक है, लाइक दिस, ए एंड बी आर रोलर्स एंड सी इज पिन सपोर्ट। सी पिन सपोर्ट है। ठीक है, पिन सपोर्ट मीन्स कुछ इस तरीके का पिलर, ब्रिज के नीचे जो पिलर दिया है, दैट इज आवर पिन सपोर्ट। Neglecting the mass of the members, the magnitude of the vertical reaction force at C. C पर vertical reaction force क्या होगा, ये जानना है। देखो, बहुत सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर होंगे, बहुत सारे चीज आएंगे इसमें। 2 नंबर का है, थोड़ा मेहनत रिक्वायर्ड है। देखो, यहाँ पर देखो, ए पर ए लोड कुछ ऐसा लगेगा क्या, आर ए। ठीक है, मैं लोड, ठीक है, आर ए लो, ये आर सी लेते हैं, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बेटर, ये आर सी लग रहा है, यहाँ पर भी आर बी लगेगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो मैं क्या बोला, हिंज, हिंज कुछ इस तरीके का है। ठीक है, एक बड़ा डायमीटर का, एक छोटा डायमीटर का, ये इसके नीचे प्रेस कर रहा है, तो ये पेन भी ऊपर की तरफ ऐसे प्रेस करेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, लेकिन दोनों का रिएक्शन बराबर होना चाहिए इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, बड़ा डायमीटर का सपोज यहाँ पर एक लोड यहाँ पर आर डी ऐसे लग रहा है, आर डी डैश लेता हूँ, तो एक छोटा वाला पिन, छोटा वाला पिन देखो, छोटा की ओर ले गया हूँ, है ना, ये बड़ा की ओर है, बड़ा होल के ऊपर है, ये छोटा होल के ऊपर है, आर डी डबल डैश। ठीक है, यहाँ आर डी डैश इज इक्वल टू आर डी डबल डैश होगा, दोनों लोड बराबर होगा, कैंसिल ही चलता है। ओके, अब देखो, दो मेंबर बोल रहा है ना, कुछ क्लिक दिया है, हिंट दिया है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर देखो, एक तो मेंबर ये आ जा रहा है और दूसरा मेंबर हमें ये आ रहा है ना, दोनों का अलग अलग सॉल्व करेंगे, काफी सारा लोड दे रखा है और ये उसमें से एक सी लोड चाहिए। ओके, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, आर ए, जितने नीचे के लोड लग रहे हैं उतना ऊपर के लोड लग रहे हैं, बराबर। पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, आर ए ऊपर में प्लस आर डी डैश ऊपर में जा रहा है, प्लस आर बी ऊपर जा रहा है, प्लस आर सी ऊपर जा रहा है। संभालने वाला कौन कौन सा लोड है, 10 ऊपर से नीचे आ रहा है, प्लस आर डी डबल डैश ऊपर से नीचे आ रहा है, प्लस 25। ठीक है, नीचे लोड वाला इक्वल टू ऊपर लोड। ओके,
अब मैं क्या बोला, आर डी डैश आर डबल डी डैश बराबर होगा हिंज के केस में, ठीक है। तो क्या आया, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो अब आगे और कैसे बढ़ा जाए। देखो दो मेंबर दे रखा है, मेंबर 1 की बात करें, यदि मोमेंट अबाउट ए कर दे 0, हो सकता है क्या, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है हम लोगों का दिस वन, ये जो है हम लोगों का ये वाला जो है एक मेंबर हो गया, और सेकंड वाला जो हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का दिस इज आवर अनदर मेंबर। ओके, लेकिन दोनों को मेरे को किस में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मोमेंट अबाउट रखना पड़ेगा हमें 0, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, कैसे करें इसको सॉल्व, मोमेंट अबाउट ए, तो सिर्फ ए पार्ट को कंसिडर करो। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आर डी डैश, आर डी डैश, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या हम ऐसे करें इजी तरीके से, मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही लोड मिलेगा, इसमें दो दो लोड का प्रॉब्लम आता है ना। मोमेंट अबाउट डी इक्वल टू 0 कैसे आएगा, ये देखो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज अबाउट डी, ठीक है। तो आर डी इंटू क्लॉकवाइज अबाउट डी कितना डिस्टेंस पे है, 0.5 0.5 1, ओके। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 10 वाला, तो -10 इंटू 0.5, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। क्या आ गया भाई, 5 कैंसिल, 5 आ गया है ना, 5 किलो न्यूटन आ गया। आर डी तो नहीं पूछा है, आर डी बोले, आर डी, ठीक है, आर डी डैश था, आर डी डैश था, ये ए था, ठीक है, ये था, मोमेंट अबाउट डी की है ना, तो आर ए इंटू 1, आर ए में 0.5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। एक तो हमने ये आ गया, अभी और सारे लोड निकालने हैं। सेकंड मोमेंट, सेकंड बीम में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोमेंट अबाउट डी निकालते हैं इक्वल टू 0, राइट साइड वाला, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ओके, तो क्या होगा, आर सी एंटी क्लॉकवाइज माइनस आर सी, कैसे मूव कर रहा है इधर की ओर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ, माइनस आर सी इंटू डिस्टेंस कितना है, 0.6 0.2 0.2, कितना हो गया, एक हो गया ना, 1 एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा लोड आ रहा है 25 क्लॉकवाइज की ओर, प्लस 25, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, डी तक पहुंचने के लिए क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस किया, डिस्टेंस जाने के लिए कितना है, 0.2 0.2 0.4 0.4, ओके। फिर यहाँ से एक और लोड है आर बी, ऐसे, ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको नेगेटिव करेंगे, माइनस आर बी इंटू क्या, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। और कुछ लोड है, कोई नहीं बचा, 0 कर दें, मोमेंट अबाउट डी क्या आया, आर सी प्लस 0.2 आर बी इज इक्वल टू 255, 5 आ रहा है, ठीक है। तो आर सी निकलेगा क्या, अभी भी नहीं निकलेगा,
ठीक है, आर ए निकला मेरे पास, आर ए निकला, हाँ ठीक है ना, निकल गया यहाँ से, यहाँ पुट करते हैं आर ए का वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 पुट आर ए इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ओके, क्या आता है, 5 प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू 35। क्या आया, आर बी प्लस आर सी बराबर क्या आया, 30। और हमें क्या चाहिए, आर सी चाहिए ना, तो आर सी को रहने दो, आर बी को गायब करते हैं यहाँ से, यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो या ऐसे कर दो इजी, 5 माइनस 0.2 आर बी, आर सी की जगह किया, इजिकल टू 30। कितना आया, 0.8 आर बी इजिकल टू 25, इजिकल टू आर बी बराबर कितना आया, 25 डिवाइडेड बाई 0.8, यहाँ से गया। ओके, तो मेरे पास क्या आया, तो फाइनली हम लोगों का इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, आर सी बराबर क्या आ रहा है, 5 माइनस 0.2 आर बी। ओके, 5 माइनस 0.2 आर बी बराबर कितना है, 25 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, 2 4 जा 8। ओके, कितना आ रहा है, 5 माइनस 6 आर बी, आर सी प्लस 0.2 आर बी इक्वल टू 5। ठीक है, आर ए बराबर 5, 30 हो गया, आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू 30। तो आर बी आर बी 5 प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू इतना, ये करेक्ट है। आर बी, ठीक है, आर सी की जगह 5 माइनस 0.2 आर बी किए, ठीक है, 0.8 आया, और ये इधर चला गया, 25 आ गया, तो आर बी बराबर 25 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, तो आर बी बराबर, ओके, इसका आंसर हम लोगों का हमें सी का वैल्यू जो आ रहा है, आर सी का वैल्यू जो आ रहा है, आर सी का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोगों का, 5। ठीक है, ये आ गया हमें आर सी। ठीक है, तो आंसर जो इसका आएगा, कैलकुलेशन प्लीज चेक। ओके, आंसर विल बी, दिस विल बी 5। ओके, दिस विल बी 5, check calculation but concept will be same. Okay, now next question, question number 4. A beam simply supported, a beam simply supported, ठीक है, एक बीम है हम लोगों का, जो क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है,
तरीके से। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा है 2013 का। सपोर्टेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड, एंड्स कैरीज इक्वल लोड्स एट ईच एंड। ठीक है, यहाँ से सपोज पी लोड ले रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट और कुछ इस तरीके का देखते हैं। एक्स, दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज आवर वाई। ठीक है, ये सपोज ए हो गया, बी हो गया, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, नो, आर ए बराबर क्या होगा, टू हो पी होगा, आर बी बराबर पी होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी, नीचे का लोड इक्वल टू ऊपर का लोड, पी होगा। सिंस सिमेट्री है तो दोनों इक्वल इक्वल लोड लेगा। टी सिमेट्री है ना, यहाँ से भी इक्वल लोड है, इक्वल डिस्टेंस पे ए सपोज, A distance suppose given in the question, equal loads at each end। ठीक है, equal distance means A and A equal distance from end। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट भी सीधे जाते हैं। ठीक है, एक लोड ऐसे ले, यहाँ एक एक्स एक्स लेते हैं ड्रॉप, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस। अब देखो एक्स 0 0 कहाँ से कहाँ तक, ए तक, ये यहाँ तक। ठीक है, मोमेंट निकालते हैं, px नहीं निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट में आंसर पूछा है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स ये कैसे जा रहा है, अबाउट ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव इंटू डिस्टेंस इंटू एक्स है ना, इंटू डिस्टेंस एक्स, और कोई लोड तो है नहीं एक्स के लेफ्ट में, तो लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, अब x इज इक्वल टू एम, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 एम, एक्स इज इक्वल टू ए पर, यहाँ ए पर पी ए होगा, यानी कि x इज इक्वल टू, यदि एम एक्स प्लॉट करें, x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो गया, x इज इक्वल टू ए पर पी ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे पॉजिटिव p इंटू ए, ये दोनों लाइन कैसे कनेक्ट होगा, विल बी लीनियर दिस। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्या है, एक और हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे एक्स एक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग नहीं करेंगे। ओके, एक्स, एक और सेक्शन हम लोग ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्स नया, नाउ बिटवीन, ये बिटवीन 0 टू ए था, ये बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, अप टू डी। ठीक है, तो एम एक्स बराबर क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखो, ये वाला क्या होगा, ये वाला अबाउट एक्स, पी लोड कैसे कर रहा है, ऐसे कट कर रहा है, कैसे कर रहा है, अबाउट ऐसे। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज देखें तो P इंटू डिस्टेंस, P इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x, नया x हो गया ना, ये नया x हो गया ना, इंटू x। दूसरा कोई लोड है, हाँ लोड है ये, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, तो माइनस पी इंटू एक्स, पूरा x में से ये e को माइनस करो, आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस, ये तो चाहिए p के लिए, ये वाला डिस्टेंस ऐसे मूव कर रहे हैं ना ऐसे, तो कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी ए। ठीक है, ये कैंसिल इज इक्वल टू पी ए, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7,
जो होता है ना एक्स और वाई, वाई इज इक्वल टू 5 है, ऐसे लाइन जाएगा, y इज इक्वल टू 5, वही है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन। ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू हो गया 5 हो गया, इसकी तरह देखे तो हो गया। y इज इक्वल क्या आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं, चले x इज इक्वल टू a पर देखें तो क्या होगा, a पर अप टू m, x इज इक्वल टू अप टू d तक भी देखें तो पी ही होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ही है, x रहा था तब तो x का वैल्यू पुट करते हैं ना, तो यहाँ पर भी पी ही रहता है, पॉजिटिव में है, ये स्ट्रेट लाइन होगा क्या, कांस्टेंट है तो, ठीक है। ओके कांस्टेंट, अब इसका ये मिरर बना दो ऐसे, जैसे ये है वैसे इसका मिरर बना दो यहाँ पर, क्योंकि दोनों सिमेट्री है ना, ये वाला और ये वाला सेक्शन सिमेट्री है, तो क्या बोल रहा है, ए बीम सिंपली सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द मिड स्पैन, नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट ढूंढो ऑप्शन में, बेंडिंग मोमेंट मिनिमम एट द सपोर्ट, मिनिमम एट द सपोर्ट, मिनिमम नहीं है, जीरो है एट द सपोर्ट, द बेंडिंग मोमेंट वेरीज ग्रेजुअली बिटवीन द सपोर्ट्स, बिटवीन द सपोर्ट्स यहाँ से यहाँ ग्रेजुअली नहीं हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द सपोर्ट्स, यस ये डी इज द करेक्ट आंसर, इज द यूनिफॉर्म, ठीक है, इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है 2009 में, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W, यूनिफॉर्म यूडीएल लोड दे रखा है, इज एक्टिंग ओवर इंटायर लेंथ 3 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर, ठीक है, एक कैंटिलीवर है, एक कैंटिलीवर है हम लोगों का, ठीक है, हाँ, क्या बोल रहा है, इसके ऊपर हम लोगों का लोड है क्या, यूडीएल, कैसा है, यूडीएल, W किलो न्यूटन पर मीटर से रखा हुआ है, लेंथ कितना दे रखा है, 3 मीटर दे रखा है, लॉन्ग, इफ द shear force at the mid span of a cantilever is 6 kilonewton, ओके, इसका जो बोल रहा है यहाँ पर, यदि x एक्सिस ये हुआ, x ये हो गया है ना, ये हो गया vx, तो बीचों बीच यानी 1.5 मीटर पे, ये 1.5 मीटर पे long. If the shear force at the mid point of the cantilever is 6 किलो न्यूटन, ओके, बीच में दे रखा है 6 किलो न्यूटन कुछ लोड, 6 किलो न्यूटन, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, तो कैसे करेंगे इसका, कुछ नहीं करना है इसको, Vx बराबर क्या होगा, यदि ये A सेक्शन है और ये B सेक्शन है, ठीक है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो ऐसे, है ना, ये x हो गया, है ना, तो Vx बराबर क्या होगा, Vx बराबर क्या होगा, नीचे में लोड आ रहा है ना, माइनस W, ये किस में है, W का यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर में, इसका यूनिट कितना है Vx का, न्यूटन में या किलो न्यूटन में, तो मीटर को गैप करना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, सपोज मैं x तक ही ले रहा हूँ, x मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ये मीटर मीटर कैंसिल, तो W इंटू एक्स, ये किलो न्यूटन में आ गया क्या, अब इसको बराबर कर सकता हूँ, इसका भी यूनिट किलो न्यूटन, इसका भी यूनिट किलो,
Okay, so remember like this. Okay, when the UDL load is given, you have to multiply with x. ठीक है, अब देखो वी एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, क्वेश्चन दे रखा है मिड पॉइंट पे। ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू कर सकते हैं क्या? इसका वैल्यू दे रखा है क्या? 6 किलो न्यूटन ईयर, है ना, और एल का वैल्यू भी दे रखा है ईयर 3 मीटर। तो माइनस डब्ल्यू इंटू 3/2 इक्वल टू 6। ओके, 3 2 जा 6। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू -4। ठीक है, कितना आ रहा है? -4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं। 4 विल बी आवर आंसर। So that's all about the shear force diagram, okay, from this chapter. Thank you all.